Well, when it comes to cinema, the successful actors are not those, and I personally think that the successful actors are not those who manage to earn huge hell lot of money or social media followers or any particular trend. For me and for so many people, the successful actors are those who manage to leave a huge impact for decades on the head and heart of the audiences. And today I'm going to chit chat with one such actor who left a huge impact on the head and heart and still making a huge impact with his recent performances. I'm talking about Mukesh Rishi Saab. So hi sir, how are you? Hi Ritu, how are you? I'm good sir, I'm good. कैसा चल रहा है सब? एकदम अच्छा है। सबको मेरा नमस्कार। जितने भी आपके दोस्त लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं उन सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। जी sir. Sir, in the world full of heroes and especially when you're tall, good looking, sharp, and with good body, in the world where everyone wanted to become a hero, you chose to be a villain. Any particular thought process or reason behind that? No, because when I joined the film industry, in fact, nobody's from my family is in the industry, Yeah, so I didn't know what is acting is all about. yes, So when these things were going inside me, then I started doing my courses, which were available that time. yeah, What was coming in inside from inside me, what was going through inside me, what I was feeling, I thought of following that. yeah, But that feeling was more to this kind of roles. And yes, then my look was not very typical like heroes because I didn't have very huge hairs and falling on my forehead. It was not like that. I was, athlete look total. The cheeks are inside, so that was very new thing when I came. So first they thought, okay, perhaps this look is okay, but this guy's cheeks are inside, here are very small. They are always thinking when they used to see me. But I followed my instinct. I said, okay, what is going inside me? I'll try yeah, for that. So that kind of feeling was there. So I used to go to meet those kind of people where I was yeah. like used to say, okay, I'm open to villain role. I really want to do the villainish role. But in that way also you broke the stereotype. पहले के हम villains देखते थे बिल्कुल ठीक है, थोड़े chubby kind of, not so pretty, and you made out a very handsome looking villain. थैंक यू थैंक यू। नहीं, पहले क्या था, दोनों चीजें होती हैं। पहले जमाने में हीरो भी 6+ हुआ करते थे, उससे छोटे नहीं होते। तो उनके सामने जो लोग आए वो भी टॉल और एकदम उनके बराबर के लोग थे। ऐसा वो टाइम था और उसी तरह के लोग सामने आए और बहुत कामयाब हुए। और ठीक है, जब मैं आया तो थोड़ी एवरेज हाइट हीरो की कम हो चुकी थी। जब मैं आया तो मैं जी, उनके सामने बहुत टॉल था। लेकिन किसी को इस बात की ऑब्जेक्शन नहीं रही। बट जो जो चीज होती है आपके लिए बनी होती है, सबसे बड़ी चीज थी कि आपको वो चीज आनी चाहिए जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं। जी, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें, जैसे स्पोर्ट्स है, फिल्म इंडस्ट्री है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ जा रहे हो। जी, तो मैं वो सब ट्रेनिंग प्रॉपर किया था, तो मुझे जो फीलिंग था मैंने उसको फॉलो जब करता था तो मुझे ऐसा नहीं लगता था आई एम डूइंग समथिंग ऑड। मुझे लगता था परहैप्स मैं ये कर पाऊंगा। तो दिस वाज जी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबॉडी। तो ताकि उसको मालूम है कि मैं ये क्रिकेट चूज करूं कि हॉकी चूज करूं, क्योंकि रनिंग तो वो कर लेता है, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट होता है उसको ही फॉलो करना चाहिए। Okay, so you have played such dynamic characters जो आज भी हम लोग और जहाँ पे आपको आपके नाम की जगह आपके कैरेक्टर्स से याद रख लिया जाए, there you have done your job, you have made it. आपको be it बिल्ला चलानी, be it the character of Hasina, be it so many characters बोला, which one is the closest to your heart? That any particular character? What happens, some of the character, when you start your career, some of the characters, some of the films becomes your favorite. Yeah, So my first film Gardish was, anyway, that film was very good, story was very good, so I was yeah, introduced there as a villain, Gardish. And then after Gardish, a few film came. Judwa, people really liked it, Judwa. Then Sarfrosh came.
So all these people, this film became favorite of mine also. तो थोड़ा ये लीग से हट कर रही, कुछ चीजें नॉर्मल भी करते रहे हम लोग. अब सरफरोश का जब कुछ सालों बाद सरफरोश आई तो इट वाज अ टोटली न्यू थिंग फॉर मी आल्सो. Yeah. तो वो जो उससे चेंज ओवर मिल गया लोगों को. मुझे आमिर खान ने ये स्टोरी सुनाई थी और उन्होंने मुझे कहा कि आप रोल कीजिए. तो मुझे फिर उसका स्क्रीन टेस्ट देना पड़ा सरफरोश का. मैंने वो स्क्रीन टेस्ट दिया तो मैं पास हुआ. Okay, so you have done in movies in almost 8 to 10 languages, जो कि बहुत कम एक्टर्स ये जिनको इतना मौका मिलता है, इतना अपना देश भर में हुनर दिखाने का और देश भर के में लोगों के अंदर अपनी जगह बनाने का. तो अगर हम ऐसे पर्टिकुलरली बात करें, which one was the toughest आपके लिए, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड, पंजाबी, which one was the toughest? ऑफ कोर्स साउथ इंडियन लैंग्वेज जो है, जो मेरे लिए एकदम नई लैंग्वेज थी जब वहाँ काम शुरू किया. Yeah. पंजाबी तो मैं हूँ तो इसलिए पंजाबी हिंदी प्रॉब्लम नहीं था मेरे को. शुरू शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ी. थोड़ा सा रास्ता भी वो बताते हैं कि आप इस तरह कर लो, जो क्योंकि वो लोग तो ट्रेन है, आप नए हैं उनके लिए, तो बताते थे. तो मेरी शुरुआत तेलुगु फिल्मों से हुआ था, तो उन्होंने कुछ बहुत सी चीजें बताया मेरे को. फिर हुआ क्या, जब तेलुगु फिल्में किया तो सारी लैंग्वेज में फिल्में मिलना शुरू हो गया. जैसे मलयालम में किया, कन्नड़ में किया, तो उस वक्त एक ही चीज समझ में आती थी कि आप मेहनत करते जाओ. अब कोर्स लैंग्वेजेस बड़ा मुश्किल है कोई भी लैंग्वेज को ग्रैब करना सो फास्ट. और फिर जब आप एक एक लैंग्वेज तेलुगु में कर रहे हैं, फिर आप तमिल में कर रहे हैं, तो मुश्किल था मेरे लिए. बट मैं मेहनत करता गया. कुछ चीजें वो सिखाते थे आपको कि ऐसे करो. फिर हमको कुछ कैमरा के ट्रिक समझ में आए कि कैमरा को कैसे चीट कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम यू कांट चीट कैमरा. तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ता है. आप जो बोल रहे हो, लिपसिंग जो है आपका मैच होना चाहिए लैंग्वेज के साथ में. तो वो सब चीजें स्टडी करते रहे, मेहनत करते रहे. फिर बाद में एक ऐसी स्टेज आ गई कि जो लैंग्वेज में कर रहे हैं उस लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज पे उस जो लाइन आपके हाथ में, आप उस पर कंसंट्रेट करो. आप इस पे कंसंट्रेट मत करो कि मैं तमिल में फिल्म कर रहा हूँ, अब मैं पूरी तमिल सीख लेता हूँ. ऐसा नहीं होता. तो जब लाइनें हमारे हाथ में आती थी तो हम उसको ध्यान में याद करो. कैसे है, मैं अपना टीवी देखता था, रेडियो सुनना, लैंग्वेज लोगों जब बात करते थे लैंग्वेज के लोग, तो उनके लिपसिंग देखना, उनका स्टाइल देखना. तो उसका आस्ता आस्ता करके थोड़ा सा कोशिश करते रहे कि हम भी थोड़ा सा मैच करें. सो उस मैचिंग में ये होता गया कि बेटर होते गए. और आज तकरीबन मुझे प्रॉब्लम नहीं आता, कोई भी लैंग्वेज हो उसे आई कैन मैनेज. ओके, अगर आपके एरा की बात करें या फिर आज के टाइम में, दोनों को कंपेयर करें, उस टाइम की इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्री में कंपैरिजन में आप एक पॉजिटिव चीज और एक नेगेटिव चीज आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आई है इंडस्ट्री में? मुझे लगता है बिगनिंग थी. और क्योंकि बिगनिंग में ही मैंने साउथ इंडियन फिल्में की, तो थोड़ा सा मुझे जो डिफरेंस लगा वो ये था कि साउथ इंडियन जो थे बहुत डिसिप्लिन थे. उनकी शूटिंग टाइमिंग बहुत थी और फिल्में बहुत ही जो टाइम पीरियड होता था उसमें फिनिश हो जाती थी. और हमारे यहाँ एक चलन था कि फिल्में मेन एक्टर जो थे लेट आते थे, तो वो डिसिप्लिन नहीं था. अब क्योंकि मेरी शुरुआत सब सीनियर लोगों के साथ हुई, रेगुलर जो अच्छे एक्टर्स के साथ, हम लोग हमेशा अलर्ट रहते थे, टाइम पे पहुंच जाते थे. तो टाइम पे पहुंचने का फायदा हमको हो गया जब साउथ में चले गए करने के लिए. और उनको ये डिसिप्लिन मैंने उनका देखा, उन्होंने जब मुझे मेरा देखा तो उनको बिल्कुल अच्छा लगा, क्योंकि उनके लिए डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है. तो वो समय से आज समय मैं देखूं तो हिंदी सिनेमा बहुत चेंज हो गया. नाउ इट्स वेरी डिसिप्लिन, क्योंकि हिंदी सिनेमा बहुत महंगा हो गया. इट्स वेरी एक्सपेंसिव नाउ. सो उसमें एक्ट्रेस नाउ दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम. उसमें तकरीबन मैं जो देखा है अभी, एक्ट्रेस जो लीड एक्ट्रेस हैं वो सब लोग टाइम पे आते हैं. और सबसे बड़ी चीज थी जो पहले हुआ करती थी कि तकरीबन करेक्टर आर्टिस्ट भी 2 शिफ्ट करते थे जब बिजी. वो शिफ्टिंग सिस्टम चला गया. अच्छा. हाँ, तो फिर यह है कि जो आदमी अगर करेक्टर आर्टिस्ट बिजी है तो इसको चेंज कर लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं. और उस वक्त हीरो लोग भी काफी फिल्में करते थे एक साथ, तो उन्होंने भी फिल्में कम करना शुरू कर दिया. और
उससे क्या हुआ कि जो करेक्टर आर्टिस्ट जो होते थे, जो डबल शिफ्ट करते थे, उनको भी चेंज करना। तो उससे क्या हो गया, सिस्टम एकदम परफेक्ट बैठ गया कि अगर मैंने आपने 8 दिन मांगे हैं तो मैंने आपको 8 दिन दे दिए, भले उसमें मेरा 6 दिन काम। तो उससे थोड़ा सा ये एडवांटेज हो गया कि टाइम पे फिल्में शुरू हो जाती हैं। अभी प्रोफेशनलिज्म बहुत है हमारी मेकिंग में। And one negative factor? नेगेटिव फैक्टर यही था उस वक्त, जब मेकिंग में जो मैंने उस वक्त देखा था, उसे मैं उस वक्त नेगेटिव मैं नहीं समझता था, लेकिन साउथ इंडिया की फिल्में जब करते थे तब मुझे लगता था यार अपने लोग तो यहाँ टाइम पे नहीं आते, यहाँ हाँ, तो सुबह 7 बजे का मतलब कैमरे पे खड़ा है, मतलब जो हमारे डीओपी होते हैं वो खड़े हैं और डायरेक्टर साहब सामने कुर्सी पे बैठे हैं, आपको वहां पहुंचना है। तो वो चीजें जब मैंने देखी तो वो मैं कहूंगा कि हमारे बॉम्बे में थोड़ा सा नेगेटिव रहा उस वक्त। मैं इसलिए समझ पाया क्योंकि मैंने आई स्टार्टेड डूइंग साउथ इंडियन फिल्म्स, yeah. सो कंपेयर किया मैंने, फिर आहिस्ता आहिस्ता आज अगर देखता हूँ तो इज ऑलमोस्ट सेम, मतलब डिसिप्लिन वाइज ऑल द एक्टर्स कमिंग ऑन टाइम, सो दिस इज वेरी गुड। Okay. So, sir, अगर अभी के टाइम में हम लोग देखें, एक विलेन का भी चेंज हो गया है, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग अप, उनकी लैंग्वेज काफी चेंज कर दी है, बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दी है। अब एक विलेन विलेन नहीं रहता आजकल मूवीज में, विलेन का पर्सपेक्टिव भी पूरा चेंज कर दिया। कभी पता नहीं, कभी ठीक चल रहा है, सडनली ही इज विलेन, विलेन को भी कभी सडनली किसी सीरीज में सडनली इसको हीरो बना देते हैं। तो आपने अगर कोई ऐसे सीरीज देखी हो अभी या रिसेंटली मूवी देखी हो जो आपको लगा देख के कि हाँ ये मैं करता तो मुझे बड़ा मजा आता, कुछ आपने ऐसा देखा काम? वैसे एक चीज बड़ी खुशी से कहूंगा मैं आपको कि हमारे अंदर हमारी मेकिंग में चेंजेस आए हैं। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ कि अभी इंडस्ट्री में एजुकेशन बहुत है। हाँ, तो उसमें यंग लड़के लड़कियां मैंने देखे जो अपना इंजीनियरिंग कैरियर छोड़ के हाँ, वो हमारे फिल्मों में राइटर बन गए, स्क्रीन प्ले डिजाइन करते हैं या प्रोडक्शन का काम संभालती हैं लड़कियां। उस एजुकेशन के आने से यंग लॉट बहुत आ गया सिनेमा में, इवन डायरेक्टर्स फॉर दैट मैटर। उससे क्या होता है, आपकी सोच चेंज हो गई। और सबसे बड़ा चेंज जो मुझे बहुत वेलकम चेंज लगा वो ये है कि पहले हमारी फिल्मों का सबसे बड़ा स्टार होता था ओवरसीज। स्विट्जरलैंड में जाते हैं, वहां खूबसूरती होगी, वहां गाने होंगे, करेंगे। वो चेंज होते आज हमने अपनी कहानियां ढूंढ ली हैं। हाँ, अब उन कहानियों के साथ साथ क्या हुआ कि बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है। हाँ, पहले जो विलन ओवरडू करता था अब उसे वो करना नहीं है, क्योंकि एक नई जनरेशन ने टेक ओवर किया है। जो उस ओवरडू को उस जमाने में जब देखता होगा तो शायद आप मेरी पुरानी फिल्में देख के आप सोचते होंगे ये क्या है ऐसा। अब वो नहीं रहा। अब जब फिल्म लाइक पान सिंह तोमर कर रहे हैं तो आपके पास जगह ही नहीं है, उसका विलन ही डिफरेंट वे बिहेव करता है। तो ये जो चेंजेस आज हमारी कहानियों में आई है उससे हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है। उसका जो अपने जो हीरो हैं वो बिल्कुल उसके करेक्टर के हिसाब से जाते हैं, क्योंकि करेक्टर से बेस्ड ऑन है पुलिस ऑफिसर, आर बेस्ड ऑन आर्मी ऑफिसर। तो आर्मी ऑफिसर कभी उस तरह बिहेव नहीं करता, तो उन्होंने वो फॉलो करना शुरू किया। और उसी तरह हम एक्ट्रेस ने भी, करेक्टर आर्टिस्ट ने भी, हमने भी उसे फॉलो करना शुरू किया कि एक जिम्मेदार आदमी कैसे बिहेव करता है, वो उस तरह नहीं होता। तो कहानियां जैसी आती हैं उसी तरह वो चेंजेस शुरू हो गए। और इसीलिए आज हम ऐसी फिल्में देख पाते हैं, पटवारी, गांव का पटवारी कैसे बिहेव करता होगा, इसलिए हम बहुत रियलिटी के क्लोज चले गए हैं। तो हाँ, मालूम ही नहीं पड़ता स्क्रीन पे अच्छी कहानियों में कि विलन का बिहेवियर लाउड नहीं है। वो ये बहुत अच्छी बात है, इट्स वंडरफुल चेंज। लेकिन कभी कभी कुछ सीन ऐसे होते हैं जो आप करते हो, आप लाउड हो, शादियों में फंक्शन में हो तो आप यूर लाउड, वहां पे अगर आप, मेरे घर में खुशी है और मैं विलन कर रहा हूँ तो मेरा एक थोड़े बड़े जेस्चर्स होंगे, वो समझ में आता है। तो ये जो चेंजेस आए हैं ये मुझे लगता है इसमें इसका रोल, सबका इसमें रोल है। एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, यंग जनरेशन जो आई है वो है, और सबसे बड़ी बात है जो हमारी दिमाग, हमारी सोच चेंज हो गई कि फॉरेन मतलब कि
बाहर की लोकेशन जो है वहां जाएंगे, वहां फिल्म बनेगी, रोड हाँ, होगा वहां, नहीं वैसा नहीं रहा। अब हमारी कहानियां यूपी बेस्ड हैं, एमपी बेस्ड हैं, हरियाणा बेस्ड हैं, पंजाब बेस्ड हैं। तो ये हाँ. मुझे बहुत ही अच्छी चेंज हमारे सिनेमा के लिए। And people are really welcoming towards this stuff. They are really liking it. We are getting the huge ratings and people are really liking the core thing. पहले एक अलग ही पोर्ट्रे इमेज बना रखा था, ठीक है, हीरोइन शिफॉन की साड़ी में स्विट्जरलैंड की वादियों में और हीरो कोई अपना स्वेटर पहन के, वो ठीक है, बट वो एक्चुअल में नहीं है हमारे यहाँ. नहीं बिल्कुल, बट आप आज अभी जैसे अभय को देखा मैंने, अभय जिसमें आप भी थे, वो देखिए, सो रियल. यस यस, वो बहुत फर्क पड़ गया। आप दंगल देख लीजिए, दंगल ने, देखिए ऐसी फिल्में जब बनती हैं तो आज दंगल ने एक एक रेसलिंग को एक इंडस्ट्री बना दिया है। या उससे पहले लड़के लड़कियां तो कर नहीं पाती थी, दंगल की वजह से जो सामने आया, जो लोग भी करते थे वो फाइनेंशियली इतने स्टार नहीं बन पाते थे, लेकिन दंगल ने एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी कि आज हरियाणा का वो जो एरिया है, दे हैव बिकम वेरी स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस एथलीट्स। इसी तरह बॉक्सिंग बेस्ड फिल्में बनी हैं, एथलेटिज्म के ऊपर फिल्में बनी हैं, क्रिकेट के ऊपर फिल्में बनी हैं, जो आने वाले समय में हॉकी के ऊपर एक फिल्म बनी थी। तो ये जो मुझे लगता है कि ये क्या था, सिर्फ आपको सोचना और आपकी लिखावट में ताकत होनी चाहिए ताकि लीड एक्टर ये बात समझ पाए। तो पहले क्या था, ये मिसिंग था। पहले कहानी ही ऐसी होती है कि आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर जो है उतरा, बहुत बड़ा लॉन है, यहाँ से शुरू होती है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि आप एक हॉकी के कोच हो और अपने टाइम के ओलंपियन रह चुके हो और आपके साथ ये हादसा हो। अब वो कहानी तो आदमी सोचता है, तो ये तभी आया जब वैरायटी ऑफ एजुकेशन हैज कम इनटू द इंडस्ट्री। अब यूपी के बहुत से लोग इंडस्ट्री में आए हैं तो एक खास किस्म की हिंदी लेके आए हैं जो आपको जो पंजाब में या महाराष्ट्र में नहीं मिलेगी। तो वो एक, अब यूपी में आप इससे यूपी में आप कहेंगे यूपी एक है, लेकिन वहाँ 10 लैंग्वेज है। हर 25-50 किलोमीटर बाद एक लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो जैसे आप बिहार के नजदीक पहुंचते हैं तो क्या कर रहे हो भाई, काहे बात नहीं सुनते हो हमारा, तो एक चेंज हो गया। तो आप उत्तराखंड चले वहाँ जाएंगे पे मैं हम में बदल जाता है. तो वो जो फ्लेवर हमारे मेन एक्टर ने जो मेहनत करते हैं आज की डेट में, उसकी मेहनत का फल है कि आज की फिल्में जो है इतनी प्रैक्टिकल हो रही हैं और उसके बीच में से बहुत सारी अच्छी चीजें निकल के आ रही हैं। Okay, sir, you were an outsider, you were a self-made actor. क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि okay, you had to face some petty politics or some hard times because you were an outsider? Was there things like that? देखिए, ये जो थोड़ा बहुत होता है ना, उसमें एक हाँ. पावर रहती है। हर डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के पास एक पावर होती है, हाँ, उसका मिस यूज वो हर जगह होता है। totally. अब मुझे भी पता है कि कहाँ मैं चेंज हो गया और कहाँ मेरा रोल कहाँ से कहाँ चला गया, ये बहुत बार हुआ है। जी. तो ये भी पता है क्यों हुआ। हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पूरी टीम एक साइड हो जाती है ना जब, तो फिर अकेले हो जाते हैं। तो उस वक्त हम लोग इतना इसे सीरियसली नहीं लेते थे। हाँ, हमें ये था कि ठीक है, जो कहा वो नहीं हो रहा या थोड़ा सा पीछे कर दिए गए हो तो मालूम है, लेकिन कोशिश यही रहती थी क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। तो वो जो डर रहता था अपने अंदर कि जहां भी है जैसे भी है करना है, कुछ करना है, तो वो चीजें होती रही हैं और ये आगे भी होती रहेगी, आज भी होती हैं, मेरे साथ भी हुई है। हाँ, अभी साउथ इंडिया में हम लोगों की पर्सनालिटी उन पे भारी पड़ती है, बट जी. वो हम लोगों को मैनेज करते हैं कि किस तरह हम लोग उनके एक्टर पे भारी ना पड़े। हाँ, कभी कभी सबसे मुश्किल बात तो ये है कि आपके जो प्लस पॉइंट्स है उनको पीछे कर दिया गया। अगर आप हीरो हो और मेरी पर्सनालिटी अच्छी है तो मेरे प्लस पॉइंट भी इक्वल टू हीरो होने चाहिए, लेकिन नहीं होता, वो मैनेज कर लिए जाते हैं। अगर मैं उन चीजों में जाता तो मैं शायद यहाँ न पहुंच पाता या इतना काम ना करता। तो मालूम सब है, हो भी रहा है, मुझे मालूम भी है, लेकिन मैं अपना ध्यान नहीं खोता था। हम कोशिश करते थे कि इससे क्या सीख सकता हूँ, आइंदा कहीं बात चली तो उनसे कह दिया भाई ये जो सीन आप कह रहे हो ये रहने वाले हैं ना, हाँ, हटेगी तो नहीं।
अभी बता दीजिए। हाँ, ये तो इस तरह की बात कर करके हम अपना मैनेज कर लेते थे। बट ये सिस्टम इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। जब तक वो जो पावरफुल आदमी पुराने जमाने में क्यों अच्छी परफॉर्मेंसेस निकल के आई, क्योंकि लोगों ने एक दूसरे पे ट्रस्ट किया। हाँ, आप जिंदगी में प्राण साहब की फिल्में देखिए, अजीत साहब की फिल्में देखिए, अगर उनके उनके रोल पीछे किए गए होते तो आज वो प्राण साहब नहीं होते। हम्म, तो पैरेलल काम करते थे उनके। तो जी, वो जमाना था कि जो आप बनाने वाला है वो आपको दोनों आंखों से दोनों को देख रहा है, एक आंख से नहीं देख रहा है। तो रिजल्ट क्या हुआ कि अच्छे काम बने। हाँ, शोले जैसी फिल्में क्यों शोले बन पाई, क्योंकि सबको बराबर आंख से देखा गया। हाँ, जो जगदीप साहब का रोल था, जब उनका था तो वो हीरो थे। हाँ, जब गब्बर का रोल आता था तो वो हीरो हो जाते थे। हाँ, और जब तीनों एक फ्रेम में होते थे, अमित जी, धर्म जी और संजीव साहब, तो तीनों बराबर के हैं। इसीलिए हाँ। बनी शोले। अब इसलिए आज भी उनको याद रखते हैं गब्बर, जय, वीरू बसंती के नाम से। तो ये जो चीजें हैं ये होती हैं, आज भी हो रही हैं। हाँ, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप लगे रहो, मेहनत करते रहो। कोई तो देख रहा है आपको कि आपको मैं यार बेटर करूंगा। किसी ने तो देखा, नया था सरफरोश, अमीर की समझ में आ गया, क्यों मुझे हाँ। कहा, मुझे चलो कहानी सुनाता हूँ आपको, एक कहानी सुनो, आप करोगे? मैं क्या, जरूर है, 100% करूंगा। तो ऐसा है, लेकिन लगे रहो, मेहनत करते रहो। अच्छा, और ये हर जगह है। अभी जैसे लास्ट सेशंस में मैं डिफेंस पर्सनल से बात करी थी, एथलीट से, तो जो एक 5 टाइम चैंपियन है देश का, जो एक जनरल पोजीशन पे पहुंच गए हैं, जो एक राइफल में पोस्टेड है, मतलब ऐसे लोगों के साथ भी पैटी पॉलिटिक्स हुई है। हाँ तो है। ये हर जगह है और ये हर रैंक पे है। और मैं बताऊं, अच्छा सोल्जर उसमें से निकल के अच्छा ही बना होगा। हाँ, मैं खुद को सोल्जर मानता हूँ। हाँ, हमारा काम है, जो मन ने कहा है। देखो, हम किसी के लिए काम करते हैं, हमें उसके लिए पैसे मिलते हैं, बात होती है, तो उतनी बात में से 10-15% वो नहीं हो रहा जो कहा गया था, बट उसमें से निकलना है हमें। नहीं तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे ऐसी इंडस्ट्रियों में, वो कहीं भी हो। यू एज ए सोल्जर इन द आर्मी, मी एज ए एक्टर, और यू एज ए पुलिसमैन इन द पुलिस सेक्टर, ऐसा नहीं हो, वो होगा। लेकिन वहीं जी। से कुछ ऐसा करना जब मौका मिले कि आप उसे ऊपर निकल। ओके सर, मैंने ना आपके लिए सोशल मीडिया पे एक Q&A डाला था, तो वहाँ पे आपके फैंस ने कुछ क्वेश्चंस पुट किए हैं, तो हम फटाफट से ये Q&A कर लेते हैं। हाँ, फटाफट करते हैं। इसमें कुछ मेरे भी क्वेश्चंस होंगे बीच बीच में। जी जी। ओके, नंबर 1, योर फिटनेस सीक्रेट। मैं स्पोर्ट्समैन था। हाँ, कॉलेज में मैं स्पोर्ट्स खेलता था, वाइस कैप्टन था क्रिकेट टीम का, हाँ, और कराटे भी करता था, तो एथलीट भी था। वो डिसिप्लिन मैंने कॉलेज के बाद कभी छोड़ा नहीं। अच्छा, आज भी मैं सारी चीजें उस डिसिप्लिन की वजह से ही चलती हैं मेरी। क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरा 1 आवर टू, उस वक्त 2 घंटे लगते थे, आज 1.5 घंटे में मैं अपना काम करता हूँ। मुझे एग्जैक्टली पता है कि दिन में किस वक्त मुझे वो 1.5 घंटे अपने आप को देने हैं, वो मेरे हैं। और सबसे बड़ी उसमें क्या होती है कि जब आप स्पोर्ट्स कोई करते हो तो आपको अकेले रहना आना चाहिए। हम्म, हर, देखिए वो क्रिकेट खेलते थे तो 24 प्लेयर हैं ग्राउंड में, हाँ, प्रैक्टिस करते करते, एक्सरसाइज करते करते अकेले हो गए कि आप अकेले एक्सरसाइज करते हो। हाँ, आप जब ये चीजें सीख जाते हो, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आती लाइफ में, आप अकेले ही निकल पड़ते हो। तो वो सब चीजें, वो जो डिसिप्लिन मैंने बनाया। अब शूटिंग में उस वक्त हर जगह जिम नहीं होते थे, तो मैं कभी इंटीरियर में जाना तो सबसे पहले हम ढूंढते थे स्कूल कहाँ पे है। अच्छा, हाँ, तो अगर स्कूल को मैं ढूंढता था, क्योंकि स्कूल होगा तो ग्राउंड होगी, हाँ, तो मैं सबसे पहले ढूंढता था कि इसमें जिम नहीं है, स्कूल कहाँ है। पहले तो हाँ, ढूंढना जिम कहाँ है, जिम दूर है जी, तो स्कूल कहाँ है, स्कूल जी आधे किलोमीटर पे। ओके, शूटिंग पे जैसे आए, 5 बजे 6 बजे, 6:30 पहुंचे, फर्स्ट थिंग मैं रूम में रेस्ट नहीं करता हूँ, खाली चेंज करता हाँ। हूँ। चेंज किया, सीधा चले गए। तो अपना 1-1.5 घंटा खत्म करने के बाद अब जो करना है, अब बैठना है, क्या करना है, तो अच्छा, डिसिप्लिन। क्रिकेट में बहुत अच्छे थे आप, एंड यू सिक्योर्ड योर कॉलेज सीट थ्रू क्रिकेट ओनली स्पोर्ट्स कोटा। कभी आपने कंसिडर नहीं किया कि ठीक है, क्रिकेट में भी करियर बना सकते हैं? देखिए, वहां तो बहुत गलतियां की बहुत गलतियां की मैंने। उसमें गलतियां ये थी कि मेरे पास एक स्पोर्ट्समैन की सारी एबिलिटी थी,
मैं टफ था, हाइट थी, क्रिकेट का बॉलिंग करता था, सब कुछ परफेक्ट था, जी लेकिन माइंड बहुत बटा हुआ था। माइंड, दोस्त लोग आते थे, लोकल दोस्त मिल गए, मोटरसाइकिल पे कर रहे हैं, ध्यान उधर चला गया। फिर कराटे कराटे भी कर लेने, और कुछ और स्पोर्ट्स भी खेल लेनी, तो उससे एक्सरसाइज भी, बॉडी बिल्डिंग भी करता था कॉलेज में। तो वो जो बटा रहा दिमाग, उसमें पोजीशन नहीं बन पाई। जी लेकिन कॉलेज के लोगों को बहुत, प्रिंसिपल जो होती थी, मेरी मैडम प्रिंसिपल थी, बहुत खुश होती थी मुझे देख के, और गाड़ी हाँ रोक के कहती थी, वेल डन मुकेश, कीप इट अप। लेकिन इन द एंड कुछ हाथ में नहीं आया। लेकिन वहां से एक बहुत बड़ी सीख मैंने ली, कुछ मिस। जी देखो, कुछ कहीं कभी आप बने भी नहीं होते, आप हो उधर, लेकिन दैट्स नॉट द प्लेस फॉर यू। तो पूरा दुनिया घूम घाम के मैं वहां पहुंचा जहां मैं करना चाहता था, और वो सारा एक्सपीरियंस मेरे काम में आया उस वक्त। और मैंने ठान ली थी, मैंने अपना फैमिली बिजनेस छोड़ दिया इस लाइन में आने के लिए। हाँ मैं फॉरेन में रहता था, न्यूजीलैंड में, वहां छोड़ के आ गया। और हाँ फिर मैंने अपने दिमाग को, अपनी सोच को बांटा नहीं, वन लक्ष्य किया उसको, अब एक्टिंग करनी है। तो उसमें ही लगा रहा, उसमें ही सीखता रहा, कैसे करनी है, ये कहाँ मिलेगी, किसके पास जाना है, कहाँ से सीखना है, वो सब किया। ये चीज उस वक्त नहीं थी मेरे पास जब मैं कॉलेज में था। तो अच्छा मैं, सर, you also married your high school sweetheart ये, and in fact you went PhD behind her. जी, So what's your mantra for a successful marriage? देखिए, मैरिज का क्या है कि आप ये समझ लीजिए, आप अपने आप से बात कर लीजिए, अब आप दो हो, हाँ जी तो प्रॉब्लम खत्म। एक टिकट नहीं आएगी, दो आएंगी। रेस्टोरेंट एक बार नहीं जाएगा, दोनों जाएंगे। तो वो हाँ सारी जो चीजें होती है ना, वही सबसे बड़ी चीज है कि जो घर रह रहा है उसको भी मैनेज करना है, वो क्या चाहते हैं, इस ऑल अंडरस्टैंडिंग। हम लोग, आदमी लोग घर से बाहर निकलते हैं तो 100 आदमी को रोज हैंडल करते हैं, हाँ कोई अच्छा लगता है, कोई नहीं लगता, फिर भी जाना है। तो घर में जब आते हैं तो वो थोड़ा 10% भी हम करें तो सब मैनेज होता है। तो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपका आपका पार्टनर जो है आपके साथ बैठना चाहे, जरूरी नहीं है कि आप आए हो तो चलो घूमने जाते हैं, थोड़ी एडजस्टमेंट है उसमें, जो आपको दिखनी भी शुरू हो जाती है और मालूम भी पड़ती है। तो वो एडजस्ट करते जाइए, और उसमें लगना चाहिए कि आप, यू आर देयर। आप घर में हो तो लगना चाहिए घर वालों को आप घर पे हो। ये नहीं जी लगना चाहिए कि आप घर में रह के आप घर पे नहीं हो, तो प्रॉब्लम आती है। तो फिर सामने वाले भी जब एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर जाते हो आप, तो फिर मामला ठीक हो। अच्छा, one food that you can't give up. मैं, राजमा चावल जो है ना मेरे सामने, उसके सामने दुनिया की, चाहे वो नॉन वेज हो या वेज हो, कुछ भी रख दीजिए, मैं कुछ नहीं देखता हूँ। अच्छा चावल जो है मेरा, वो सबसे बढ़िया है। okay, ever thought of joining politics? ये महानुभाव पूछ रहे हैं। नहीं, मैं ज्वाइन नहीं करता, लेकिन मेरे दोस्त लोग हैं, उनके लिए कन्वेंसिंग जरूर करता हूँ। जी इस तरह के प्रोग्राम बहुत अटेंड किए मैं, और दोस्तों के लिए करता हूँ, बट आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एवरी, स्पेशली फॉर पॉलिटिक्स। who's been your inspiration? मुझे इंस्पिरेशन, मैं खुद को ही समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि आप जब जिंदगी में इतना कुछ सामने दिख रहा, आप नहीं कर पा रहे, घर का बिजनेस नहीं एडजस्ट हो पा रहे, तो इंस्पिरेशन थी नहीं। तो जब बिखरना शुरू हुए तो तब रियलाइज होना शुरू हुआ कि अब तो लाइफ जो है संभालनी पड़ेगी, जी शादी हो चुकी है। तो उस वक्त जो सीरियसनेस आई, उसको फिर मैंने, वो सारी चीजें जो मुझे दूसरों में ढूंढनी थी, मैंने अपने अंदर डालने की कोशिश की। लेट्स बिकम ए डिसिप्लिन पर्सन, लेट्स बिकम ए पर्सन जिसका गोल एकदम क्लियर है, लेट्स वर्क हार्ड ऑन दिस लाइन। मैंने चुनी है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है। घर वालों में जो बिजनेस में सबका हिस्सा था, मेरा भी था, लेकिन मैंने नहीं लिया किया। तो वो सब चीजें मैं खुद करते करते अपने आप को ही मैंने उसमें ढाल दिया कि जो जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मैं कितना परफेक्ट हो सकता हूँ। एक्टर तो आप बनते रहते हो, कम होगा ज्यादा होगा, या और मेहनत करूंगा बेटर हो जाऊंगा, लेकिन जो डिसिप्लिन मैंने क्रिएट किया इंडस्ट्री में, वो मुझे बहुत ही उसके ऊपर गर्व है। और मुझे वो करते समय कोई
कोई तकलीफ महसूस नहीं, बोझ महसूस नहीं होता। अगर आप मुझे 7 बजे बुला रहे हो तो आई एम देयर 7 o'clock। तो मैं उस तरह तो कभी नहीं देखा मैंने किसी को। हाँ, एक्ट्रेस लोग अच्छे लगते थे, धर्म जी बहुत अच्छे लगते थे, उनकी तस्वीरें मेरी अलमारी में होती थी। तो जीतू जी हो गए, अमित जी हो गए, इन सब लोगों को बहुत पसंद, ऋषि कपूर साहब, तो इन लोगों को बहुत हाँ पसंद किया। और हाँ, उनको एक्टरों को देखते थे कि किस तरह हो रहा है, कैसे हम बेटर कर सकते हैं, या कैसे यूज हो रहा है, क्योंकि थोड़ी जब समझ आ गई तो उसी को उसी में ढाल दिया। उसमें कहीं से मुझे समझ में नहीं आई कि कहाँ से किसको मैं रखूं कि मुझे जैसा बनना है, ऐसा नहीं। अच्छा, any character actor that you admire or of your era or this new generation, कोई है जो आपको लगता है हाँ, मैं कैरेक्टर एक्टर? 100% देखो, करेक्टर आर्टिस्टों में आपको बताऊं मैं, जैसे प्राण साहब जो थे, मैंने प्राण साहब के साथ फिल्म में कभी काम नहीं किया। लेजेंड। एक ही फिल्म की थी, लेकिन वो भी मेरा सीन नहीं था उनके साथ। एक लाल लाल बादशाह फिल्म आई थी जिसमें उनका छोटा सा हाँ एक हाँ हाँ। था, लेकिन मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं था, तो वो मिस कर गया उनको। वो बहुत कमाल के रहे। अजीत साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छे नासिर साहब एक थे, करेक्टर आर्टिस्ट, फादर के रोल करते थे, बहुत जबरदस्त रोल किए हैं उन्होंने। राम और श्याम में उनका रोल देखो आप। तो बहुत से करेक्टर आर्टिस्ट उस समय मिले हमको। जी। ये बोल रहे हैं, ये एक डिफेंस पेज है, वहां से रिक्वेस्ट आई है, सर अपना कोई डायलॉग बोल दीजिए प्लीज। सरफरोश की कुछ लाइनें मेरे ख्याल लोगों को बहुत। हाँ, सूट भी जाएंगे, पूरा डिफेंस पेज है ये। हाँ, 10 नहीं साहब, 10,000 मिलेंगे। नहीं साहब नहीं, फिर कभी किसी सलीम से मत कहना ये मुल्क उसका घर नहीं। वाह। अच्छा, ओके, ये थोड़ा फनी है बट मैं इसको बहुत एडमायर करूंगी क्योंकि यही असली पहचान है, दैट यू मेड इट। ये बोल रहे हैं, सर ठाकुर नहीं, भानु प्रताप ठाकुर की खीर में जहर क्यों मिलाया? आई मीन I mean, look at your work. People remind you like this. Okay, uh, this is the power of the character. यस, लिखावट है वैसी, जी। लिखावट है उसमें। एक बड़ा अजीब सीन लगा उस वक्त मेरे को, लेकिन किया हमने। मैं हूँ, मेरे सब लोगों की तस्वीरें लगी हुई है और मैं उनको बुरा भला कह रहा हूँ, क्योंकि जी। मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ अमिताभ जो ठाकुर का रोल है उनसे कर रहा हूँ। लेकिन मेरी करतूतें सब खराब हैं और उनकी सब अच्छी हैं, फिर भी कंपेयर कर रहा हूँ। और अपने बुजुर्गों से कह रहा हूँ, ये क्या किया आप लोगों ने, कौन हो तुम लोग, क्या छोड़ गए मेरे लिए, पैसा छोड़ गए, ये किया, लेकिन इज्जत इतनी सी नहीं छोड़ी। अब मुझे, मेरे साथ क्या बिहेव करते हैं, और ठाकुर को देखो किस तरह उसके साथ सब उसके पीछे जाते हैं। तो बहुत अजीब लाइनें थी उसमें जिसमें मैं बुरा भला कहता हूँ। लेकिन क्या है, कहानियां तो जब आती हैं तो फिर करेक्टर भी वैसे ही चार्ज होता है। वो उसमें जो उसको लगता है कि वो, जब कहानी आप तक पहुंचती है तो बहुत सारे हाथों से, दिमागों से होकर निकलती है, तो बहुत कुछ उन्होंने ऑलरेडी सोचा होता है आपके लिए। फिर फिर आप कुछ सजेशन दो कि हाँ भाई ऐसा करते हैं, ऐसा ही होता है। क्योंकि कहानी शुरू होती है कि राइटर के दिमाग से निकलती है, फिर वो डायलॉग वाले के पास जाती है, डायलॉग उसमें आते हैं, तो करते करते पॉलिश हो के आपके पास पहुंचती हैं चीजें। फिर आप जो भी बेहतर कर सकते हो कीजिए। अच्छा सर, वन टिप फॉर एस्पायरिंग एक्टर्स। एक तो क्या है कि डिसिप्लिन है, एक है। और दूसरा क्या है कि आपकी जो एज है ना, आज के एक्टरों की एज जो है वो छोटी हो गई है। पहले जो हाँ। एक्टर थे वो 30 के बाद के एक्टर आते थे इंडस्ट्री में। जब एज छोटी है आपकी हो जाती है तो आपके पास रोल बचता ही नहीं सिवाय मेन रोल के, जी। और वो सबसे मुश्किल रोल है। आप कभी देखिएगा, मैं जो आपको बात कहने जा रहा हूँ, कभी भी ऐसा समय नहीं आया कि जब आपके पास एक्स्ट्रा हीरोज हों। जी। हमेशा कमी रहती है। क्यों कमी रहती है? इसीलिए क्योंकि हीरो का बनना ही बहुत मुश्किल प्रोसेस है। आपकी जब 24-25 साल उम्र है तो आप में उतनी अदाएं है ही नहीं आप में जी। कि आप रो भी लें, हंस भी लें, हंसा भी लें, मार भी लें, छलांगे भी लगा लें। तो कुछ चीजें तो ठीक है, कुछ चीजें है नहीं आपके पास। तो इसलिए आपकी जो स्ट्रगल है बहुत टफ है। हाँ।
इसमें अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप अपने आप को जज नहीं करेंगे, आप दूसरों पे छोड़ देंगे कि मुझे बताइए मैं कैसा लगता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको खुद ही जज करना है कि दिस इज, आई एम नॉट देयर, आई हैव टू जी बेटर माई सेल्फ। तब जाके आप वो हीरो बनेंगे, नहीं तो फिर आपके लिए रोल नहीं है। फिर सेकंड रोल है विलन का, और आजकल विलन का रोल वैसा नहीं रहा, जी पहले होता था। एक अलग से उसके लिए चीजें लिखी जाती थी, बनाई जाती थी। तो आपका इस एज के हिसाब से बहुत टफ है आपके पास। आप मेहनत कीजिए और अपने आप से बात कीजिए कि क्या मैं ये सब चीजें, बहुत सब एक्टर हैं, हम सब एक्टर हैं, जी लेकिन जब आप गिवन टाइम पे कहते कहा जाता है कि ये कीजिए, तब आप बनते हैं एक्टर। मेरा कहने का मतलब है कि आप सीखो जरूर। आप ये मत सोचो कि आपने 6 महीने में सोच लिया और 6 महीने आपने दे दिया और एक्टर बन गया। 6 महीने में कुछ नहीं बनता। ना तो आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हो, ना सोल्जर बन सकते हो, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, कुछ नहीं बन सकते। तो 6 महीने में आपकी ग्रेजुएशन भी नहीं होती, उसके लिए भी उतना ही समय देना होता है। तो आप जब एक्टर बनने आए, आप लाइन पकड़ो, लेकिन अपने आप को 25 साल के अंदर इतनी मेच्योरिटी आनी चाहिए कि आप इतनी अदाएं और भाव आपके पास आ जाने चाहिए कि जब जी चाहे आपको कैच कर। दैट्स व्हाई यू आर कॉल्ड हीरो। जी सर, लास्ट एक ये बोल रहे हैं कि हाउ टू डील विद क्रिटिसिज्म, क्योंकि आप अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स करते हैं, एक्टिंग करते हैं, काफी लोग बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो हाउ टू डील विद दैट क्रिटिसिज्म, क्योंकि वो बहुत मेंटली भी अफेक्ट करता है। देखिए, मेरा इसमें एक ही कहना यह है कि पहले क्या था कि क्रिटिसिज्म का एक्टिंग पॉइंट ऑफ सोर्स ये होता था, जब आप किसी को मिलते थे तो वो आपसे कहता था हम्म, आपने अच्छा किया, बुरा किया। फिर ये जो अभी जो माध्यम आए हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म एक्टर का बहुत कम होता है। क्रिटिसिज्म होता है जब आप दुनियादारी का सारा ठेका लेना शुरू करते हैं, जी वहां शुरू होता है। एक्टिंग, आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, स्पोर्ट्समैन अच्छा बुरा हो सकता है, अच्छा बुरा एक्टर हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी इज्जत मिलती है हमको, ठीक है। अगर हम गलतियां करेंगे, तो गलतियां, ये जो सोशल प्लेटफॉर्म बना है ना, वहां पे जो आप बिना बात के हर एक आदमी पार्टिसिपेट कर रहा है उसको, और उसको मालूम नहीं है कि क्या कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। और फिर ये छोटा चीज नहीं, अभी क्या है कि आप एक सारी दुनिया है, जी एक चीज बोलेंगे तो फिर वहां भी बोलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कई क्रिटिसिज्म कहाँ पे आप फंसते हो, उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। जी, because it's a responsibility too. इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने अपनी जिंदगी का फैसला किया हुआ है, मैं वही बातें करता हूँ जिसमें मैं किसी को इनकरेज कर पाऊँ। हाँ, जब देश के लिए भी वही बात करता हूँ जब मुझे मेरा दिल खुश होता है, जब मुझे अंदर से आवाज आती है कि फलां गरीब आदमी रिक्शे वाले की बच्ची ने इतनी मेहनत की और उसके 95% आए, तो वो लड़की मुझे मेरी लगती है, और उसके लिए अगर मैं कहीं कुछ कहूँ तो मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है। जी अदरवाइज आप देखो, कुछ चीजें बनी हुई हैं, हर सोसाइटी में हर लोग हैं, उनके वो काम है, पॉलिटिशियंस के कुछ काम है, वो मेरा काम नहीं है। तो हाँ मेरा काम है टोटली। कि मैं जो जो भगवान ने मुझे दिया, मैं किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ या उसमें कोई अच्छी बात डाल सकता हूँ, तो मैं उस तरह, मैं हर चीज में करूंगा तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा, ओके सर, लास्ट आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे का क्या है कि मैं अपने बेटे को लॉन्च किया है, मैंने एक पंजाबी फिल्म में उसको लॉन्च किया है। यस। इस फिल्म का नाम है निडर, या और मैं प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ। फादर और सन की कहानी है, और ऑलमोस्ट हमारी फिल्म आधी बन गई थी, तो मार्च में लॉकडाउन शुरू हो गया। तो लॉकडाउन अभी जैसे ही खुलेगा हम उस फिल्म को फिनिश करके जी आएंगे। तो ऑब्वियसली वो फिल्म नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी। तो अभी मेरा काफी सारा ध्यान उसमें था, और प्लस जो कुछ अभी कुछ फिल्में जो जी बची हुई थी जो अभी नहीं पूरी हो पाई, तो जैसे ही ओपन अप होगा विल स्टार्ट वर्क। लेकिन बेटे पे काफी ध्यान है मेरा कि अब उसके अभी प्रोडक्ट जो अच्छा से बन जाए तो ठीक है। भगवान करे वो भी बिल्कुल हमारे दिलों पे आपकी तरह छाप छोड़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, इट वाज सो लवली चैटिंग विद यू। थैंक यू सो मच। और आपने बख्शी जी को मेरा प्रणाम देना है, और डोगरा साहब को मेरा प्रणाम देना बिल्कुल। है। He's such a sweet man. He's so, and we are so proud to have such wonderful soldiers. We're so blessed. या मैं देखता हूँ उनको टीवी पे, बहुत, बाय गॉड व्हाट अ सोल्जर इज, हर चीज में उनके
नेशनलिज्म आता है उनकी बातों में. So God bless you. Thank you, sir. Do well in your life. Yes, sir. Regards to your family and everyone. All the best. बिल्कुल सर, आप आइए, ब्रज आइए, मथुरा आइए आप. जरूर आपसे मुलाकात. बिल्कुल सर. Thank you so much. All the best. God bless. Bye bye. Bye bye.